I hope I'm audible, right? Sorry, there was some kind of issue in disconnection. Just give. All right. So I hope everything is settled now and everyone is joined. Let me just see why this internet is unstable. Just let me fix my internet issue. There is some kind of the instability. Okay. So I believe we are good to start. So first of all, welcome you all in the Gwinnett Technologies, right? So we are the training platform by which you can get multiple key technology training based on the Cisco SD-WAN, which is going to start today, along with the Versa SD-WAN, which is just started last week. Also, we are dealing with the Zscaler Palo Alto firewall. We having some kind of the other firewalls, F5 and the cloud solution also going to very soon start. Okay. So we are like leading training providers and we keep helping the people in terms of the upgrading the knowledge, right? So they can at least upgrade themselves. They can go to the next level in the career. They can be also always unique from the skill set whenever he is going to present himself or herself of any of the job perspective, any of the interviews, right? So anytime you can reach out to us, you can visit our websites, you can contact us on these numbers to get more information about upcoming training program, right? So today's session is all about uh, Cisco SD-WAN. So ये session will try to do in the Hindi and English both. So you guys have to, very comfortable and ask me anything, whatever you feel. कि मेरे को पूछना है, I want to understand about the training content, I want to understand about the any concepts. So I'm not going to say no, I'm not going to explain. You can always approach me and आप लोग मेरे से discussion करके and you can clarify your knowledge, right? So this is what and this is how we are dealing with the trainings, right? It's very personalized kind of trainings, right? And we always respect our peoples. हमें ये पता रहता है कि if someone is coming to us for the training, they really need help, right? So देखो ट्रेनिंग तो हर जगह अवेलेबल होती है. You can go and see the training lives and the pre-recordeds. Many courses are available in the market, but the thing is लाइव ट्रेनिंग का बेनिफिट्स आप लोग को ये होना चाहिए कि योर पर्सनलाइज क्वेश्चन शुड बी आंसर, राइट? कि आपके पास जो भी क्वेरी है दैट शुड बी वेरी प्रिसाइसली आंसर. आपके दिमाग में जो क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आपको उसका जवाब मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कर लिया और आपके पास जवाब ही नहीं है. तो देर इज नो यूज ऑफ द ट्रेनिंग. सो दिस इज वी बिलीव इन द क्वालिटी कि हमारी जो ट्रेनिंग है, अगर आप यहाँ पे आते हो एंड वी आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई योर क्वेरी, सो यूजलेस, वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. सो हमारा मेन फोकस होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को हमारे साथ आप एसोसिएट हो. हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है जो हम भी रन कर रहे हैं. आई एम द इंस्ट्रक्टर हु इज रनिंग लाइक more than 5 to 6 training program like Palo Alto firewall, CCNA, CCNP, Cisco SD-WAN, Versa SD-WAN, Zscaler. A lot of things I'm dealing alone, and more also trainer is that already joined there and they are doing a lot of things. So the quality is never going to compromise regarding any training. Even you are coming with the CCNM and you want to start your career, so you just go and watch the CCNA series of the video available on the free YouTube channel, right? So that's really going to discuss in very deep anything. If you are discussing that is going to be very deep, आपको वहाँ पे बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मिलेगा. बहुत सारा आपको बेसिकली चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था. सो बहुत सारे सेशन हमने किया है अबाउट द सिस्को SD-WAN, पोलो SD-WAN. हमारे पास CCNA की, CCNP, इन कोर, NRC, आप में से बहुत सारे लोगों ने सेशन ऑलरेडी ले रहे हैं एंड ले रहे होंगे इन फ्यूचर ऑल्सो. तो वी थॉट कि भाई क्वालिटी एंड द कॉन्सेप्ट
both should be very clear कि अगर आप ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आप चीजों को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो किसी को, तो फिर दैट्स नॉट फ्रूटफुल फॉर मी एंड यू एज वेल. सो आपने इतना टाइम वेस्ट किया अपना, अपना वेस्ट नहीं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट मैं सही वर्ड यूज करता हूँ, इन्वेस्ट किया आपने, मनी इन्वेस्ट किया, और चीज़ों को हम टुगेदर ट्राई किया सीखने के लिए. फिर भी अगर किसी रीजन से नहीं सीख पाते हो, तो हमारे पास उसका भी एक सोल्यूशन, वी कैन ऑफर द पीपल कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो यू कैन ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन आवर अपकमिंग लाइव बैचेज, एंड आप कभी भी आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो. तो हम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे. जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वी ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट. सो आप यहाँ देखो, डिफरेंट डिफरेंट बैचेज हम हमेशा लेते रहते हैं, सीसीएनए का, सीसीएनपी, एनआरसी का, वर्सास डिवान, जी स्केलर्स, राइट. सो ऑलमोस्ट सब वीडियोज अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच कि भाई क्या किसमें क्या डिस्कशन हुआ. देन यू कैन रियलाइज कि what we are doing and how we are helping to the people, right. So moving to the anyone here who don't understand the Hindi, any people in group who having a difficulty to understand Hindi, आप लोग बताना अगर किसी को, if anyone having the like not clarity on the Hindi language, they just know in the English, so I will help to clarify, right. हम Hi, sir. Good morning, हाँ. sir. Seshu here. Yeah, yeah, Sashu, yeah. Sir, actually, I have some problem with Hindi. But I can understand, but I can't manage to speak. But Okay, no problem, if you no can problem. speak in English, that's well and good. Thank you so Okay, much, sir. okay. Thank you, thank you. So I'll try to use both of the language. So if anyone having any problem in any language, just let me know, because this is a public batch. So we try to convey the masses in both of the language, or try to go with the global language so people can understand easily, right? So thank you so much, Sesu, and thank you so much for the everyone for joining the session. All right, I can see a lot of people, 11 participants already joined. So you all come in the Gwinnett Technology. You all welcome in the Gwinnett Technology. Let's start our session, right? So without further delay, I would like to explain what is the SD-WAN, right? आप लोग कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो and you go anywhere for the any kind of discussion. So people will start, basically there was a legacy WAN and now we having the SD-WAN. So what is different between the legacy WAN and versus SD-WAN? This is the first thing they might be going to ask. So you just having some kind of the appropriate answer. आपको ऐसे क्लैरिफाई करना चीजों को कि दैट इज मोर प्रिसाइज, कि सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाए कि व्हाई बेसिकली. सो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, एनीथिंग, अगर कुछ न्यू बनी है चीजें, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी आया है, राइट. सो उस न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन के साथ साथ दैट मीन्स कि पुरानी वाले में कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट. So if you're learning the new, you should know about the old technologies कि उसमें क्या ऐसी दिक्कतें थी, what was the problem in the old technologies, जिसकी वजह से they basically require the new technology. So अगर आपको problem पता होगा, if you know the problem, then it is very easy to you explain the solutions. So you should know the problem first. If you know the problem, then we can talk about the solutions. So we must have some problem in the SD-WAN, legacy WAN technology that is known as the wide area network. And then there is a must solution. There is some must very good solution in SD-WAN. That SD-WAN is known as software defined. So let me just write here, software defined wide area network. So these are the two technologies. One was the SD-WAN, which is just now few year back introduced, but before that we having the WAN. So let's understand the problem कि उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सिस्को एसडी वैन हमें लाया गया है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम. सो एक एक करके अगर समझने की हम कोशिश करेंगे, सो we'll try to come to the conclusion. So let's start. So the problem, before I can talk about the problem, let's understand कि हमारी जो लेगेसी वैन का आर्किटेक्चर कैसा होता था, राइट. सो हमारा जो लेगेसी वैन होता था, आप मान के चलो कि ये हमारा कोई एक साइट है, आप इसको एक ब्रांच लोकेशन मान लो, राइट. सो दिस इज योर ब्रांच लोकेशन साइट. सो मैं जस्ट एक सेकेंड. सो दिस could be my any of the branch location site.
Let's assume this is your branch location site, and you having this router. This is going to connect it in this way, right? And behind this router, we having the LAN, and behind this LAN, just visualize. If you able to visualize, we able to understand the concept and technologies. जो भी ये चीजें, so ये सारी चीजें हो गई. This is going to connect this way. This is going to connect this way. और ये सारे मान के चलो आपके एंड सर्वर्स हैं, पीसीस हैं, कुछ भी हो सकते हैं, could be connected in a different way. ये एंड क्लाइंट भी हो सकते हैं. So these are connected in this way, and let's assume. So ये मेरा हो गया क्या? This is my switch, and this is my R1, and this is my R2. And इसके बाहर की दुनिया क्या हो गई? The world after this is your ISP. So ये वाला आपका basically WAN architecture हो गया. ये दोनों आपके WAN हो गए. This is the WAN, and basically this is your LAN architecture. So in LAN, your switch is connected with the WAN, right? So this is your legacy WAN technology, जहाँ पे हमें कुछ इस तरह की डिजाइन मिलती थी, जो जेनरिक डिजाइन होती थी. इट कुड बी एनीथिंग. सिंगल लिंक भी हो सकता था, आपका ट्रिपल राउटर भी हो सकता था. यू हैविंग द मोर देन 3 लिंक्स एज वेल. डेटा सेंटर के सिनारियो में होता है कि बहुत सारे केस में आपका 3 लिंक्स ज्यादा भी चीजें हो जाती हैं. सो इट कुड बी एनीथिंग, but you have to understand how things work in the normal wide area network. So जब मैं normal wide area network की बात कर रहा हूँ, that is a WAN technologies. So basically होता क्या है कि जब आप wide area network के बारे में बात करते हो, तो wide area network का मतलब पहले ये होता है कि whatever the communication you are going to do from the LAN perspective, that is going to connect to the internet, right? Or any global ISP, which could be your MPLS, जो कि आपके डेटा सेंटर से कनेक्ट करता हो, या कोई लोकल आईएसपी वो भी आपके डेटा सेंटर से कनेक्ट करता है. डिपेंड करता है कि योर कंट्री व्हाट टाइप द आईएसपी यू आर गोइंग टू टेक. और ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू टेक द मेट्रो इथरनेट सर्किट्स, राइट? So metro ethernet is also going to extend your network to the one location to another location, right? So it means if you are using the wide area network, that wide area network is going to be connected across your wide area network, which is the ISP, which is the collection of the multiple wide area network. And then you can extend your traffic from one location to another location. किसी ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना है तो यू कैन यूज इट. किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना है, यू कैन यूज इट. सो इस पर्टिकुलर डिजाइन में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. इट वाज रनिंग फैंटास्टिक, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक. But the need of the market has been changed. The need of market has been changed. And when the need of market has been changed, then this has become the problem. The live example you can see here, before the COVID, all schools, colleges were doing the absolutely fine job. सबके यहाँ क्लासेस लगती थी, बच्चे स्कूल जाते थे. आप लोग के भी किड्स होंगे, और माइट भी अगर मैरिज नहीं हुई है तो आपके घर में होंगे किड्स, एंड माइट भी आप लोग ने कॉलेज किया होगा आप लोगों ने. जस्ट थिंक अबाउट द नीड कैसे बनती है. तो कोविड से पहले सब लोग स्कूल जा रहे थे, एंड बढ़िया सब कुछ चल रहा था. स्कूल बसेस आती थी, पेरेंट्स बच्चों के स्कूल छोड़ते थे, एंड आप लोग कॉलेज भी जाते थे. सब कुछ बढ़िया चल रहा था. बट सडनली कोविड आ गया. कोविड आने की वजह से आपकी जो स्कूल की जो लाइफ साइकिल है, स्कूल लाइफ साइकिल, वो पूरा चेंज हो गया. कि अगर आपको स्कूल जाना है, राइट, सो यू कैनॉट गो, यू कांट गो स्कूल, राइट? You can't go school. So if you can't go school, then what next? How to take the education? How to take the classes? Let me just mute. If you can't go school, then how you can take the classes? This is the need, and this is the problem. So जहां पे प्रॉब्लम आता है वहां पे सॉल्यूशन आता है. जहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई, सो आई विल फिगर आउट द सॉल्यूशन कि अब मेरे पास क्या सॉल्यूशन है. स्कूल तो मैं जा नहीं सकता, बट आई कैन नॉट स्टॉप माई एजुकेशन, राइट? सो कांट स्टॉप माई एजुकेशन. सो मैं एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, बट मैं स्कूल भी नहीं जा सकता हूँ. तो
इन सर्टन सिनारियो, इस केस में फिर हमने एक ऑनलाइन लाइक एजुकेशन सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया। जिस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हमने जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, या तो गूगल मीट के थ्रू या तो जूम के थ्रू, टीचर अपने घर से या फिर किसी भी लोकेशन से, दे स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द क्लासेस एंड पीपल स्टार्ट डूइंग द ई लर्निंग। सो आपकी एक प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से हो गया। सो जैसे ही आपका प्रॉब्लम आया, आपका सॉल्यूशन वहां पे मिल गया। सो ऐसे ही जब एसडी वैन नहीं था, तो वैन चल रहा था, देयर वाज सर्टेन प्रॉब्लम्स। ये सर्टेन प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि आपका जो पर्टिकुलर जो डिजाइन था नेटवर्क का, जो तरीका था काम करने का, वो चेंज होने लगा। पहले क्या होता था कि अगर आपका लेगेसी नेटवर्क की मैं बात करूं, तो यू हैविंग द योर ब्रांच ऑफिसेस। ये स्टोरी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पास क्या होता था, ब्रांच ऑफिसेस होते थे, राइट। आपके पास दूसरा होता था डेटा सेंटर्स होते थे। डेटा सेंटर्स होते थे, या तीसरा आपका किसी लोकेशन पे आपका हो सकता था हब लोकेशंस बोलते थे, हब ब्रांच लोकेशन आप इसको बोल सकते थे। So this was all like system, and these things were available in your network. So आपके यहाँ पे ये ब्रांचेज ऑफिसेस होते थे, आपके डेटा सेंटर्स होते थे, और आपके हब लोकेशन होते थे। तो होता क्या था कि आपका अगर किसी एक लोकेशन से इफ यू वांट टू गो, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इन अलग डायग्राम में, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो होता क्या था कि मान के चलो कि आपका यहाँ पे यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे कोई आपके ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये एक ब्रांच हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, और हो सकता है कि आपका एक ब्रांच हो गया, ये आपका डेटा सेंटर लोकेशन हो सकता है। तो ये ब्रांचेज आपके बेसिकली आईएसपी से कनेक्टेड होंगे। ये आपका हो सकता है कि आपका ये आईएसपी बेसिकली इंटरनेट का भी हो सकता है और एमपीएलएस का भी हो सकता है। एक एक स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस आईएसपी कुड बी, सॉरी, ये आईएसपी आपका इंटरनेट भी हो सकता था, और ये आईएसपी आपका एमपीएलएस भी हो सकता था। इट कुड बी एनीथिंग, एंड दिस ब्रांच इज गोइंग टू बी, दिस इज द ब्रांच 1, and this is the branch 2, and this is the branch 3. This all could be connected with the different ये आपके इंटरनेट से भी कनेक्ट होंगे, एमपीएलएस से भी कनेक्ट होंगे, इंटरनेट से भी कनेक्ट, सबके पास डुअल रिडंडेंसी है। सो मान के चलो कि ये आपका डेटा सेंटर है, ये वाला लोकेशन आपका डेटा सेंटर है, सम कॉन्टेक्स्ट, ये आपका डेटा सेंटर है। तो यहाँ पे आपका R3 लगा हुआ है, यहाँ पे R4 लगा हुआ है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो ये R3 के पास भी आपके पास एक लिंक इंटरनेट से जाएगा, और दूसरी लिंक हमारे पास इंटरनेट से भी एमपीएलएस से भी जाएगा। सो मैं दूसरा लिंक इस पे इंटरनेट एमपीएलएस से भी लगा देता हूँ। सो दिस इज हाउ, ओह सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो ये यहाँ पे चला गया, तो फिर ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो सबके बाद डुअल लिंक्स हो गए। सो मेरा जो डिजाइन था, एक हमारे पास एक ऑफिस थी जिसके पास हमारे पहले से कोई आईएसपी इंटरनेट लिंक यहाँ पे लगे लगे हो सकते थे, जो मैंने यहाँ पे लगाया था, और उसके साथ साथ मैंने सारे अपने ब्रांचेस को भी आपस में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। दिस इज हाउ आई कैन थिंक अबाउट माई सॉल्यूशन ऑफ द वैन। बट इसमें होता था क्या कि अगर एक ब्रांच, इफ दिस ब्रांच वांट टू टॉक टू दिस ब्रांच, सो दे कैन टॉक डायरेक्टली ओवर द आईएसपी। सो आपका ट्रैफिक यहाँ से ऐसे जाएगा, और दे कैन टॉक टू दिस। दिस इज द वन सॉल्यूशन। इफ ही वांट टू टॉक वाया द इंटरनेट, तो ये भी इससे ऐसे बात कर लेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं थी। अगर दिस ब्रांच वांट टू टॉक टू डेटा सेंटर्स, सो डेटा सेंटर से बात करने के लिए बेसिकली इट कैन यूज ईदर ऑफ द आईएसपी एंड रीच टू डेटा सेंटर। If you want to go via the MPLS, they can go via the MPLS. If they want to go via the internet, they can go via the internet. So it was absolutely fine till here. There was no problem. But the problem start happening when you having your applications in your cloud infrastructures. अब क्या हुआ कि आपके डेटा सेंटर में जो एप्लीकेशन होस्टेड थे, you wanted to change them to host in the cloud infrastructure. So your cloud infrastructures can be anywhere. इट कुड बी एनी क्लाउड। हो सकता है कि वो क्लाउड आपका बेसिकली AWS में हो,
वो क्लाउड आपका एज्योर में हो, so it could be the AWS. Let me give you some other color. So the cloud could be AWS, it could be the Azure, right? It could be the GCP or Alibaba. It could be any cloud provider you can think about. So आपके applications cloud में host करना होगा, right? So the cloud में जब host करना हुआ, so आपके जो clouds different location पे hosted हैं, you just have to build the reachability. ये हो सकता है कि अलग अलग locations पे हैं, तो आप reachability कैसे build करोगे इनके साथ? So you just have to two way कि अगर इफ यू वांट टू गो इन द क्लाउड, सो आपको या तो अपने लोकल आईएसपी से सर्किट लेकर आप इन क्लाउड को कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। एक तरीका ये हुआ कि आपने अपने लोकल आईएसपी से अपने क्लाउड प्रोवाइडर को कनेक्ट कर दिया। अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट देम नॉट बाय द लोकल प्रोवाइडर, सो आपको डेटा सेंटर के राउटर से फिर आपको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके तरीका है, यू कैन जस्ट कनेक्ट देम बाय द डेटा सेंटर राउटर। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन कनेक्ट देम, बट द प्रॉब्लम इज कि योर एप्लीकेशन इज सेग्रीगेटेड, इट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल लोकेशन। सो आपकी एप्लीकेशन बहुत सारे लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जब एप्लीकेशन आपकी बहुत सारे लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो just maintain them integrity, to maintain the right security, to flow the optimum path to reach to those application, to make the better user experience, ये सब प्रॉब्लम आने लगी कि एक एप्लीकेशन हो सकता है कि मेरा इंडिया में हो, दूसरा मैंने यूके में कहीं डिप्लॉय कर दिया, एक क्योंकि उसका डेटा सेंटर क्लाउड में कहीं भी हो सकता था। अब मैं अगर ब्रांच से निकालता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी आई हैव टू इंटीग्रेट माय फायरवॉल हियर टू मेंटेन द सिक्योरिटी। अगर मैं अपने डेटा सेंटर से भेजता हूं, क्योंकि मेरा फायरवॉल डेटा सेंटर में, तो यहाँ अगर फायरवॉल ऐड करना तो यू हैव द एडिशनल कॉस्ट फैक्टर। अगर फायरवॉल लगाना तो कॉस्ट लग जाएगा आपका, पहले तो फायरवॉल था नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भेजना चाहते हो तो यू नीड टू फायरवॉल, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी। अगर आप डेटा सेंटर भेजते हो तो लेवर लेटेंसी इज वेरी हाई, क्योंकि आपका डेटा सेंटर किसी और कंट्री में पड़ा हुआ है और एप्लीकेशन किसी और कंट्री में पड़ा हुआ है। सो दिस वाज द हेल ऑफ द थिंग्स इज स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग के लिए, आपका जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट एंड यू जस्ट नीड इट। बट अगर आप ये चाहिए तो आपके साथ प्रॉब्लम बहुत सारे आने लगे। तो हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? तो एक तो मैंने एक जस्ट प्रॉब्लम बताया कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हो गई बहुत सारे लोकेशन पे, तो यू हैव टू मेंटेन द सिक्योरिटी, यू हैव टू मेंटेन ऑल काइंड ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका जो एप्लीकेशन लेवल रिस्ट्रिक्शन, यूजर एक्सपीरियंस, लेटेंसी, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, बीइंग अ नेटवर्क आर्किटेक्ट, बीइंग अ नेटवर्क डिजाइनर। सो जब इतनी सारी चीजों को अपने ध्यान में आप रखते हो एंड यू वांट टू बिकम some good architect for your company, so you just have to figure out the good solution as well। ये तो solution मेरे लिए शायद यूजुअल नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इसको सीधा यहाँ से भेज दूं या डेटा सेंटर से भेज दूं, दो ही गेट में मेरे पास। अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं करूं। अब इस ऑप्शन में जाता हूं तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को पैसा अगर ज्यादा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि आई हैव टू इंस्टॉल द डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी अप्लायंस टू माय ब्रांच लोकेशंस। डेटा सेंटर से जाता हूं तो आई हैव टू चेंज माय पाथ्स, मेरे को देखना पड़ेगा, तो वहां पे मैं सर्किट चेंज करनी पड़ेगी, आईएसपी चेंज करना पड़ेगा, या हो सकता है कि मैं उस सब भी करने के बाद भी मेरा ऑप्टिमल जो मेरे को एक लेटेंसी चाहिए वो ना मिले। सो दिस वाज द वन प्रॉब्लम। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, SD-WAN इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, जो मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ। इसी तरीके से और क्या क्या प्रॉब्लम थी, चलो हम एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो ये तो मैं थोड़ा सा बहुत हाई लेवल बता दिया, जो आप लोगों को शायद समझ में आया। मैं लो लेवल की चीज बताता हूँ जो आप लोग बिल्कुल रियलाइज कर सकते हो कि व्हाट इज दैट। अब मान के चलो कि यू आर रनिंग दिस पर्टिकुलर SD-WAN नॉर्मल वैन सोल्यूशन, राइट? अब देखो क्या होता था कि मान के चलो कि आपको बोला गया है कि यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस राउटर ऑन द साइट, you just have to install this router on the site। किसी भी रीजन से हो सकता है दिस राउटर गोज फॉल्टी, किसी भी रीजन से राउटर आपका फॉल्टी हो गया एंड यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट। तो क्या अप्रोच होगा, आप समझो इसको। तो पहले व्हाट यू हैव टू डू, बीइंग अ NOC engineer or the implementation engineer, you just have to like arrange a RMA। अगर राउटर रिप्लेस करना तो इशू, पहले आप प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन समझो। प्रॉब्लम, राउटर become faulty, right? So what action you have to take?
एक प्रॉब्लम है तो एक्शन यू जस्ट हैव टू टेक, एक्शन टू टेक, रिप्लेस द राउटर। ये आपको एक्शन लेना आती है। इस राउटर रिप्लेसमेंट प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? सो जस्ट अरेंज द आरएमए। किसके साथ अरेंज करोगे? जो भी आपका वेंडर है, सिस्को भी हो सकता है, जूनिपर भी हो सकता है, जो जिसका भी आप वेंडर आप यूज करो, यू जस्ट हैव टू यूज दैट वेंडर। तो मान के चलो वी आर रनिंग लर्निंग द सिस्को एसडी, मतलब सिस्को की हम बात कर रहे हैं। अब आपने आरएमए अरेंज कर लिया, सो आरएमए इज गोइंग टू डिस्पैच, आरएमए डिवाइस डिस्पैच्ड टू साइट लोकेशन। ये आपका साइट लोकेशन में डिस्पैच हो गया। जैसे ही साइट लोकेशन में डिस्पैच हो गया, व्हाट यू हैव टू डू, you have to arrange local field engineer FE or hand uh, hand supports, local hand support, इसको आप लोग समझ लेना। मैं ठीक है, मैं चलो आ नहीं रहा एक लाइन में, तो मैं इसको छोटा करके FE मान के चलो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। So you just have to arrange the local field engineer. So what next? After arranging a local field engineer, your field engineer must have some kind of the good internet connectivity. FE should have good internet connection. Prerequisite, these are they just have some screen sharing software. Screen sharing software क्या हो सकता है? It could be the your Zoom, Teams, etc. और Webex। ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपकी चाहिए। फिर 6 में क्या चाहिए? अ नॉक इंजीनियर। नॉक इंजीनियर भी चाहिए आपको, जो उस राउटर को कॉन्फ़िगर करेगा, राइट। एक नॉक इंजीनियर भी चाहिए। रिमोट सपोर्ट, रिमोट, दिस इज द रिमोट सपोर्ट। आपकी कॉन्फ़िग की जरूरत होगी उस राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें चाहिए। एंड 8th में इफ एवरीथिंग इज रेडी, यू नीड एडिशनल सॉफ्टवेयर, दैट इज द पट्टी सॉफ्टवेयर। आपको कंसोल केबल चाहिए, कंसोल केबल कनेक्शन भी चाहिए। एंड इसके बाद यू कैन प्रोसीड टू रिप्लेसमेंट। जो मैं आप लोग को मोटा मोटा 10 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट। सो आप लोग समझो इसको क्या होता था कि एक राउटर रिप्लेसमेंट करने के लिए जस्ट हैव टू अरेंज द आरएमए। आपकी डिवाइस साइट पे डिस्पैच होती है, आपके एपी जाता है, एपी के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एपी के पास स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जूम वेबएक्स जो भी है, नॉक एक नॉक इंजीनियर भी होना चाहिए, जो बेसिकली आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन उस पर कर सके रिमोट लेकर। आपके उस पे जो भी आपका जो बंदा होगा उसके उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपका जिसके लिए स्क्रीन शेयर कर सके हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, कंसोल केबल भी होनी चाहिए। सो एवरीथिंग शुड बी रिक्वायर्ड। अगर एनीथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस ऑल, सो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप चीजों को नहीं कर सकते थे। तो दिस इज गोइंग टू टेक ह्यूज टाइम फॉर यू। आपको एक राउटर रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको एफी जाएगा एंड देन ही इज गोइंग टू गिव द कंसोल। कंसोल देने के बाद आप उसमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन बैकअप अपने निकालोगे किसी टूल से या अपने लोकल ड्राइव से, एंड देन you just have to do the configuration of the devices. This is how it is going to happen. But अगर यही आपकी SD WAN का बॉक्स होता है, सेम अगर SD WAN का अगर नॉर्मल WAN की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर यही मेरा SD WAN राउटर होता, so these all step not going to required. Only required आपका first step, second step, and अगर आप local FE arrange करते हो, that is going to required. 3 स्टेप अगर आप सिर्फ करते हो, योर राउटर इज गोइंग टू रिप्लेस। आपके बाकी जो ये सारी चीजें हैं, ये सब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एसडी वैन। सो लेगेसी वैन में अगर एक राउटर इंस्टॉलमेंट करना, दैट इज लॉट ऑफ एफर्ट इज गोइंग टू रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ इंजीनियर, मैन पावर, कॉन्फ़िगरेशन, टूल्स, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ये प्रॉब्लम अगर आप एसडी वैन में यूज करोगे राउटर, सो दैट इज गोइंग टू बी ओवरकम। आपका सिर्फ 3 स्टेप में आपका सिर्फ आरएमए करना है डिवाइस को,
डिवाइस साइट पर डिस्पैच हो जाएगी, लोकल साइट जाएगा और उसको सिर्फ पावर कनेक्ट कर देगा, वैन लिंक कनेक्ट कर देगा, उसको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन बैकअप की जरूरत नहीं है, कोई पुट्टी की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ही कैन गो एंड डू द रिप्लेसमेंट। और लगा के लैन वैन केबल एंड पावर ऑन करके चलाएगा और आपका राउटर जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग, इज इट रियली जोक और इज इट्स मैजिक? इट्स ट्रू, दिस इज हाउ एसडी वैन इज गोइंग टू वर्क, जो हम इसको पढ़ेंगे अपने सेक्शन में, जीरो टच प्रोविजनिंग प्रोसेस क्या होता है एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। सो ये एक प्रॉब्लम ये थी जो आपका एसडी वैन इज गोइंग टू हेल्प यू टू जस्ट मिनिमाइज दोज प्रॉब्लम। क्लाउड का बता दिया मैंने, और दूसरा मैंने एक राउटर रिप्लेसमेंट का। तीसरा समझने की कोशिश करूँ प्रॉब्लम क्या है, कि पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि मान के चलो कि ये दो लिंक हैं, ठीक है, ये वाली दो लिंक आप मान लो, इसको भी भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस टू लिंक्स, इसको भी भूल जाओ आप। मैं यहाँ पे अभी भूल जाता, ये दो लिंक हैं, these टू लिंक्स, ये वाले दोनों, ये आपकी प्राइमरी लिंक है, दिस इज द प्राइमरी लिंक एंड दिस इज सेकेंडरी लिंक। तो प्रॉब्लम क्या आपकी लिंक में आ रही है? द इशू इज यूजर इज फेसिंग स्लोनेस, ये इशू है, यूजर इज फेसिंग स्लोनेस, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम इज यूजर इज फेसिंग स्लोनेस। अब जैसे ही यूजर स्लोनेस किया, सो दैट इज गोइंग टू रिपोर्ट इट टू योर नॉक इंजीनियर। सो नॉक इंजीनियर जो होते हैं, नेशनल ऑपरेशन सेंटर, सो नॉक इंजीनियर्स स्टार्ट वर्किंग, उनके पास अपना खुद का L1 सपोर्ट होता है, L2 सपोर्ट होता है एंड L3 सपोर्ट होता है। इसके बाद डिजाइनर कंसल्टेंट L4 आते हैं। सो द स्टार्ट हैविंग लाइक, कि आपको एक यूजर ने कंप्लेन किया कि मेरे को कोई एप्लीकेशन है, whenever I am just accessing those application, I have some kind of a latency। ये मान के चलो कि आपका एप्लीकेशन हो सकता है SAP का, ठीक है, just give me 1 second। So you are facing a slowness while accessing the applications। So जब एप्लीकेशन को एक्सेस करने में आपको स्लोनेस आ रहा है, so there is must some kind of checks going to be required। So L1 engineer is going to check that कि बॉस कोई हमारे पास अलर्ट तो नहीं है, कोई सर्किट डाउन तो नहीं हो गई, अपना फटाफट अलर्ट वगैरह चेक करेगा एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द लाइक L2 हेड्स अप, कि वो टिकट खोलेगा या माइट बी ही विल कॉल टू द लेवल 2 इंजीनियर कि हे बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम, can you please help me, there is some kind of a slowness in my network, customer just reported to me, because the level 1 is just for the monitoring, they are not capable to do troubleshooting. Some level 1 engineer are really good because they invested the time and technology to learn, so they can also troubleshoot, they can do much better than the level 2 as well sometime, I have seen in the organizations. But yes, technically if you ask me, level 1 in company, once they hire the level 1 engineer, they hire basically to just do the monitoring and stuffs. But once you are the level 2, you will be the problem solving engineer. So level 1 engineer basically 0 to 3 years के बीच के एक्सपीरियंस के जो इंजीनियर्स होते हैं, दैट इज लेवल 1 होते हैं, राइट। लेवल 2 जो बेसिकली आपके होते हैं, आपके इंजीनियर, दैट इज गोइंग टू हैपन 3 to 6 year, आपके जो बेसिकली L2 इंजीनियर्स होते हैं, एंड 6 to इट कुड बी द 10 12 जो आपके, और 15 तक जो आपके लेवल 3 इंजीनियर्स होते हैं, डिपेंड टू कंपनी और इंजीनियर टू इंजीनियर। सो sometime lower and higher could be the also possibility। So that engineer is going to reach out to the level 2, hey level 2 engineer, there is a problem, can you just figure it out? तो आपका लेवल 2 इंजीनियर एंगेज हो गया एंड आफ्टर एंगेजिंग उसने इस लिंक की चेक किया, हेल्थ चेक करने के बाद उसको मिला कि इस लिंक में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें आपकी हो सकता है कि द बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज हाई, एक चीज हो सकता है, या इस लिंक में पैकेट लॉस है, या इसकी रिलायबिलिटी आपकी डाउन हो गई है, राइट। सो रिलायबिलिटी भी आपकी लो हो जाती है कई बार लिंक की, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, या कोई एरर्स आ गई है सर्किट्स पे, किसी तरह का CRC एरर्स आ गया है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी ऑन दिस लिंक। सो उसने फिगर आउट कर लिया कि प्रॉब्लम है इस लिंक में, एंड we have to fail over the circuit because this is the primary circuit and this primary circuit having the failover means इसमें problem है, so we just have to do the failover। So how the failover is going to work? Now this is the next question। So
अब आपको फेल ओवर करना है, एंड द फेल ओवर बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस इज योर वैन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वाला वैन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बेसिकली बीजीपी चल रहा है, सो द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। सो यहाँ पे आपने बीजीपी चला दिया है कि दिस इज माय बीजीपी, एंड द लैन में माइट बी आप रनिंग ओएसपीएफ। सो आपने एक लैन में ओएसपीएफ रन कर रहे हैं और बीजीपी कर रहे हैं, और इनकी आप म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। सो आपका ओएसपीएफ के राउट बीजीपी में जा रहे होंगे, और बीजीपी के राउट आपका ओएसपीएफ में आ रहा होगा। सो इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू द फेल ओवर। जब तक आपके पास प्रॉपर एसओपी नहीं है या प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रोटोकॉल का, आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई, but the moment you trying to do the failover and you don't having the full knowledge about the BGP and OSPF, how the BGP work, how the OSPF work, how the route can be advertised in the BGP, and how it can be redistributed in the OSPF. These all things if you don't have, and how we can do the manipulation of the path based on the various attribute of the BGP for the inbound and the outbound. So you cannot do this failover. So अब यहाँ पे L2 engineer है, that is in a trouble. उसने प्रॉब्लम तो फिगर आउट कर दी, बट कई बार अगेन L2 इंजीनियर आल्सो नॉट हैविंग द वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ट्रस्ट मी, बिकॉज दे माइट बी प्रमोटेड बिकॉज ऑफ द देयर लॉन्ग ड्यूरेशन, उनको अच्छी प्रोसेस नॉलेज होती है, बट टेक्निकली दे आर नॉट मच साउंड्स जो चाहिए होता है कंपनी को। तो वो क्या करते हैं फिर उस केस में, दे आर रीच आउट टू द L3 इंजीनियर्स कि हे L3 इंजीनियर, कैन यू प्लीज हेल्प मी। आई फिगर इट आउट। L1 ने पास किया कि प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम किसने बताया, द कस्टमर। कस्टमर से इंटरेक्शन करने के बाद L1 जस्ट टिकट ओपन कर दिया, L2 के एंगेज कर दिया। L2 ने प्रॉब्लम फिगर आउट कर दिया कि यहाँ पे कोई हमारा सीआरसी एरर है, रिलायबिलिटी, इस लिंक में प्रॉब्लम है बेसिकली। अब इस लिंक में प्रॉब्लम है तो दे हैव टू जस्ट शिफ्ट द ट्रैफिक फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। दिस इज समथिंग दे हैव टू इन्वेस्ट देयर टाइम। अब L3 इंजीनियर इज द एक्चुअल इंजीनियर, they having a real brain, they know everything, right? कि भाई कैसे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ओएसपीएफ होता है। तो वो पूरा प्रोटोकॉल को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन हैपन, मुझे कौन सी कमांड हटानी है कि मेरा ये प्राइमरी बन जाए या सेकेंडरी बन जाए। तो वो अपना लॉजिक यूज करेगा, एंड देन फाइनली ही विल डू सम काइंड ऑफ चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर राउटर, दिस राउटर माइट बी, वो कुछ आपकी HSRP के लैन के गेटवे की प्रायोरिटी चेंज कर दे लैन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीजीपी में जाकर आपको वो आपकी मैनिपुलेशन का एट्रीब्यूट चेंज करते। दैट कुड बी एनीथिंग, वेरिएशन है, ओएसपीएफ में वो कॉस्ट के साथ मैनिपुलेट कर ले। सो ये सारी चीजें पता होगी तभी तो करेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि HSRP कैसे चलता है, यू डोंट नो हाउ द ओएसपीएफ कॉस्ट मैनिपुलेशन इज गोइंग टू हैपन, हाउ योर बीजीपी पाथ मैनिपुलेशन, तो हाउ यू कैन डू दैट। सो फर्स्ट यू नो दैट। सो L3 बनने के लिए यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन द टेक्नोलॉजीज। आपको टेक्नोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर एनआरसी। अगर आप एनआरसी नहीं करते हो तो यू कैन नॉट लर्न दिस ऑल थिंग्स। तो आपको चीजें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो फाइनली ही कम टू द सॉल्यूशन कि बीजीपी के कुछ एट्रीब्यूट चेंज करना है, एंड देन मेरा जो है फेल ओवर इज गोइंग टू बी हैपन। सो दिस इज हाउ दे कैन थिंक अबाउट टू द फेल ओवर। लेकिन कई बार बताता हूँ, ट्रस्ट मी, even it is going to happen failover, L3 engineer also stuck sometimes because they not did the right homework, या they are not focused about their work। कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन से वो भी मिस्टेक्स कर देते हैं, और कई बार फेलोवर हमारा स्टक हो जाता है। और जब हमारा फेलोवर स्टक हो जाता है, ट्रस्ट मी गाइस, वी हैविंग द आउटेज, एंड आउटेज मींस दिस इज लीड टू द मेजर escalations और सर्विसेज डाउन हो जाती हैं। सर्विसेज डाउन कैसे हो जाती हैं, आपने फेल ओवर किया है, इसमें स्लोनेस आ रही थी, ये यूजर से ये हो सकता था कि ये रेस्टोरेंट के यूजर हैं, मतलब या बैंक यूजर हैं, बैंक यूजर में विड्रॉ मनी और सम काइंड ऑफ द अदर एक्टिविटी, दे स्टॉप डूइंग ऑल ट्रांजेक्शंस। तो जब ये ट्रांजेक्शन आपके बंद होने लगते हैं, तो बंद हो जाएंगे, तो आपके यूजर जो है बेसिकली स्टार्ट शाउटिंग ऑन यू कि बॉस तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ गई, और व्हाट द हेल यू आर डूइंग। तो आपका नेटवर्क डाउन हो गया पूरा, आपके बैंक यूजर खड़े हैं, रेस्टोरेंट में खड़े हो आप कहीं पे फूड डिलीवरी के लिए, वहां बिलिंग नहीं हो रही है, आपके टोल गेट पे खड़े हो, आपकी कार की फास्टैग नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो समझो कितना फ्रस्ट्रेशन हो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, और वो हाईवे का जो टोल सिस्टम है, फास्टैग सिस्टम है, दैट इज इंटीग्रेटेड विद द इंटरनेट, राइट, जो आजकल चल रहा है, और आपका पेमेंट ही लेना बंद कर दिया फास्टैग। आप लोगों ने कई बार फेस किया, दिस रियल प्रॉब्लम। तो क्या होता है फिर,
यू हैव टू स्टे इन द लॉन्ग टाइम इन द क्यू। आप कितना इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, यार क्या ये टोल वाले कर रहे हैं, यू स्टार्ट शाउटिंग व्हाट द हेल दे आर डूइंग, आई एम स्टैंडिंग 30 मिनट से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जाम लग गया, ये हो गया वो हो गया। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो प्रॉब्लम आती है तो कौन फेस करता है? यूजर फेस करता है। आप कहीं मैकडी में गए बर्गर लेने के लिए, या आप डोमिनोज में गए, या जस्ट यू गो इन द सबवे, या किसी पिज्जा हट में गए और वहां पे आउटलेट पे 10 लोग खड़े हैं और बिलिंग होना अचानक से बंद हो गया। वो भी तो कंप्यूटर से ही करते हैं बिलिंग, दे ऑल्सो नीड एन इंटरनेट। बिलिंग होना बंद हो गया। भाई वो बंदा बोल रहा है कि क्यों बिलिंग नहीं हो रहा है, तो आप, वो बंदा बोल रहा है कि जी लिंक डाउन हो गया है। अब उसको नहीं पता है कि लिंक क्या होता है, कैसे चलता है। वी आर द इंजीनियर, वी आर द हियर टू फिक्स ऑल लिंक्स। हम सब कुछ मैनेज करते हैं, बैंक मैनेज करते हैं। वी आर द प्रिविलेज यार, कि हम, हमारे पास इतनी पावर है कि वी आर रनिंग ऑल टेक्नोलॉजीज। सो आप लोग अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। नेटवर्किंग इंजीनियर के बिना आज के डेट में एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे जूम पे बात हो रही, चाहे इंटरनेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वी आर द वन हु इज रनिंग। सो वी आर रियली बैकबोन ऑफ द एनी कंट्री। बिना हमारे एक चीजें कम्युनिकेट नहीं हो सकती। हम चाहें तो किसी कंपनी का पूरा पत्ता हिला सकते हैं, अगर इंटेंशनली हम करना चाहें तो। किसी का नेटवर्क बैठाना चाहें, इजी फॉर मी कि सब कुछ जाके शट डाउन कर दो, आपका सब बंद हो जाएगा। फॉरवर्ड में जाकर रूल बना दो, डिनाइड है ना, सब बंद हो जाएगा। लेकिन जॉब भी चली जाएगी साथ में। तो आप लोग करना नहीं है ऐसा, ठीक है? बट जस्ट सेइंग कि आपको क्या पावर है, आप क्या, कितने सेंसिटिव आपकी रूल्स हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसलिए आप लोग कंपनी इतना पे करती है कि यू आर कम इन द स्किल्ड इंजीनियर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं एंड द पीपल आर डूइंग, दे आर द वेरी स्किल्ड इंजीनियर्स एंड दे आर डूइंग। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने यह फेल ओवर किया, एनी मिस्टेक की लीड एंड देयर इज अ इशू विद द योर लिंक्स, और आपका फेल ओवर यहाँ पे ब्लॉक हो गया और आपका पूरा यूजर डाउन हो गया। इस केस में मेजर एस्केलेशन सर्विसेज डाउन हो जाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम थी। देखो कितनी सारी आपको तामझाम करना पड़ रहा है इन टर्म ऑफ द फेल ओवर। लेकिन अगर यही एसडी बैन होता, ट्रस्ट में, अगर सेम चीज एसडी बैन होता, मेरे बैच के कुछ लोग इस क्लास में हैं, दे नो दैट कि हाउ एक्सप्लेन। सो अगर यही एसडी बैन होता, आपको ना सोचने की जरूरत, प्रॉब्लम भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत है ना, L2 ना L3 कुछ भी। प्रॉब्लम आया स्लोनेस, ठीक है, एसडी बैन अपने आप ही समझ लेगा कि प्रॉब्लम स्लोनेस, ठीक है, और वो अपने आप ही टू द सेकेंडरी। तो मतलब कहने का, ना L1 को टिकट, ना L2 को आपको एंगेज होना पड़ा, ना L3 को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ी, सब कुछ अपने आप हो गया। इज इट रियली मैजिक? मैजिक। अभी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, सब कुछ सही आ रही है? विजेंद्र सेइंग वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, sir. Sometimes it happens. समटाइम्स इट्स हैपन। ओहो, ये पता नहीं क्या चक्कर है। ओके, सो अगली बार आया तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है? आई विल स्विच माय नेटवर्क। सो ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर एसडी वैन आपने यूज किया, तो यू जस्ट हैव टू बेसिकली, यू जस्ट हैव टू एसडी वैन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट द ट्रैफिक फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एसडी वैन। आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये एक आपके पास सोल्यूशन, राउटर रिप्लेसमेंट, एप्लीकेशन मूवमेंट, और आपका तीसरा मैंने बताया कि बेसिकली आपका फेल ओवर सिनारियो कैसे हो सकता है। चौथा सिनारियो हो सकता है कि मान के चलो कि आपकी जो लिंक है यहाँ पे, ये जो लिंक है, ये दोनों एक्टिव एक्टिव सिनारियो में चल रही है। एक्टिव एक्टिव सिनारियो क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपके दोनों लिंक से आपका ट्रैफिक जा रहा है। एक्टिव एक्टिव का मतलब कि ये भी आपका एक्टिव है और ये भी आपका एक्टिव है। सो दोनों ही लिंक से आपका ट्रैफिक जा रहा है। तो जो हमारा नॉर्मल वैन होता है उसमें कैसे होता है, उसमें हम लोग करते हैं लोड शेयरिंग। देखो यहाँ पे होता है लोड शेयरिंग। लोड बैलेंसिंग बहुत कम ही जगह होता है, तो लोड शेयरिंग, क्योंकि बीजीपी में हम जनरली लोड शेयरिंग करते हैं, जब बीजीपी हम वैन में यूज करते हैं। तो लोड शेयरिंग में हम क्या करते हैं कि वी जस्ट डू वन थिंग, कि हम कुछ प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, मान के चलो कि R1 से R1 राउटर, R1 राउटर इज प्राइमरी फॉर 10 प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस मींस राउट, आप मान लो इसको, ठीक है, 10 प्रीफिक्सेस। R2 is primary. R2 router is primary for 8 prefixes. ये राउटर्स हो गए, ये दोनों के लिए प्राइमरी सेकेंडरी बन गए। तो जब आपके R1 एंड R2 दोनों आपके लोड शेयरिंग कर रहे हैं, तो कुछ आपके यूजर के ट्रैफिक
प्राइमरली आपके इस लिंक से जा रहे हैं, मतलब ये यूजर बैठा है तो कुछ ट्रैफिक आपके इधर से जा रहा है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो मान के चलो कि ये आपका कोई और कर, ये यूजर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिस यूजर ट्रैफिक इज प्राइमरली गोइंग फॉर दिस, ये ग्रीन वाला, और इसका सेकेंडरी ट्रैफिक आपका इधर से जा रहा है किसी ट्रैफिक के लिए। दिस इज हाउ इट इज गोइंग। बट ये प्रीफिक्स बेसिस पे हो रहा है, आप इसको मतलब एप्लीकेशन बेसिस पे नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन बेसिस क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि प्रीफिक्स मेरा कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं है नेटवर्क का सबनेट क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई यूजर अगर फेसबुक पे जाना है, दिस इज द एप्लीकेशन, फेसबुक ऐप पे जाना है, तो वो मेरा R1 से जाए। अगर उसको व्हाट्सअप वीडियो कॉल करना है तो वो मेरा R2 से जाए। व्हाट्सएप मैसेज करना है उसको तो मेरा वो R1 से जाए। इज इट रियली पॉसिबल? द आंसर इज यस, पॉसिबल। कि मैं एप्लीकेशन फेसबुक चैट किसी को करना है, फेसबुक अगर चैट किसी को करना है, फेसबुक चैट, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरा R2 से जाए। फेसबुक मेरा मेरा अगर वीडियो कॉल करना है किसी को तो मैं चाहता हूँ R1 से जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई जीमेल खोले तो मेरा R2 से जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा यूट्यूब खोले तो वो मेरा R1 से जाए। तो एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग, एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग जो होती है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द SD WAN। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द लेगेसी वैन। ये सारी चीजें आप लेगेसी वैन में नहीं कर सकते हो, इट इज ओनली पॉसिबल इन द SD WAN सॉल्यूशन। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट हाउ पावरफुल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन द अपकमिंग सेशन, जो मैं जब बताऊंगा कि बेनिफिट्स, आपकी सिक्योरिटी कैसे होती है, लोअर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, कैसे आपका रिड्यूस कम हो जाता है, कैसे आप इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग कर पाते हो, प्रिडिक्टेबल एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग जो मैं बता रहा था, जेट प्रोसेस कैसे होता है, जीरो ट्रस्ट फैब्रिक क्या होता है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, हाई कॉस्ट, लिमिटेड स्किल्स, क्लाउड नो रेडीनेस, फ्रेगमेंटेड सिक्योरिटी जो मैं बता रहा था, इनसे तो मैं सारी चीजों को एक साथ जोड़कर एक चीजों को बताने की आप लोगों को कोशिश करूंगा इन अपकमिंग सेशन। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज विद द एवरी टेक्नोलॉजी, जहां पे प्रॉब्लम होती है उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है। तो इस तरीके से हम चीजों को आपस में कंबाइन करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट 50 मिनट से बोल रहा हूँ, एनी क्वेश्चन मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं लिया, सॉरी फॉर दैट। आप लोग के लिए थोड़ा Q&A में खोलता हूँ, एंड यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड वी कैन हैव अ डिबेट, ठीक है? वेरी गुड डिबेट, सो वी ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स। तो आप लोग क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द इंग्लिश, यू कैन आस्क इन द हिंदी। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग को और हम इसमें ऐड करें, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो यू फील फ्री टू आस्क। Sir, SD-WAN and what's up SD-WAN? Can you please elaborate? Okay, Sameem Akhtar, right? Yes, sir. Okay, Sameem Akhtar, welcome to Gwinnett. Yeah, definitely I'll help you explain. So Versa SD-WAN and the SD-WAN. So let me explain it. Okay, so Rahul's, okay, I'll take the question, how Versa is advanced than the Viptela, sir. Okay, so let's discuss everything. So two question we have for the Versa and one is for the firewall. So मेरे को दोनों ही क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को लेने दीजिए आप लोग। तो मैं एक काम करता हूँ कि what I'll do, let me just open a word file. Okay, so क्या बात कर रहा हूँ, चलो मैं उसी को एरेंज कर लेता हूँ ताकि इस पे तो लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो कैसे करें कैसे करें, let me just use this one, whiteboard, notepad. So मैं इनको हटा ही देता हूँ, ठीक है? लेट्स रिमूव दिस ऑल, इसको रहने देता हूँ। ठीक है, ओके। सो हमारे पास जो
क्वेरी है दैट इज अबाउट द वर्सा SD-WAN वर्सेस सिस्को SD-WAN। ये हमारे पास एक क्वेरी है जिसको समझना। तो देखो वर्सा SD-WAN एंड सिस्को SD-WAN। सो अगर आप SD-WAN के बारे में बात करते हो, किसी भी SD-WAN के बारे में बात करते हो, तो SD-WAN इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिमेन सेम, कि आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आप राउटर के बारे में बात करते हो, तो राउटर इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये राउटर आपका हो सकता है मल्टीपल वेंडर का हो सकता है कि सिस्को का हो सकता है कि जूनिपर का हो सकता है TP लिंक का जो घर में लगाते हो ये भी हो, या हो सकता है नोकिया का हो, राइट। इट कुड बी द ब्रॉकेट, इट कुड बी द HP, इट कुड बी द वर्सा, इट कुड बी एनी अदर वेंडर। सो बहुत सारे वेंडर है, दे कैन मैन्युफैक्चर द राउटर्स। सो राउटर किसी भी वेंडर का हो सकता है। तो SD-WAN सॉल्यूशन की जो बात करते हैं, दिस SD-WAN सॉल्यूशन ऑल्सो कुड बी एनी वेंडर्स। ये किसी वेंडर का हो सकता है। जैसे विप्टेला SD-WAN का हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्को SD-WAN। विप्टेला SD-WAN एंड सिस्को SD-WAN सेम होता है। सिस्को SD-WAN, विप्टेला SD-WAN इज सेम। इसके बारे में बताऊंगा हिस्ट्री क्या है आगे चलकर, क्यों सेम होते हैं। इस तरह से हमारे पास वर्सा SD-WAN होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वेलो वेलो क्लाउड SD-WAN होता है। इस तरह से हमारे पास सिल्वर सिल्वर पीक होता है, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, सिल्वर पीक SD-WAN होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास और हमारे पास फोर्टीनेट SD-WAN होता है। 40 लिखता हूँ, 40 SD-WAN, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। काटो का भी अगर खोजोगे तो काटो SD-WAN मिल जाएगा आपको। सो बहुत सारे SD-WAN मार्केट में, पोलो अल्टो का भी SD-WAN होता है। सो PA SD-WAN, लाइन खत्म हो जाएगी। सो ये आप मान के चलो बहुत सारे होते हैं। तो दीज आर द ऑल वेंडर्स, ठीक है, दे हैविंग द SD-WAN सॉल्यूशंस। सो देखो कितने सारे वेंडर्स हैं, तो क्या सर आपको सारे। ये 1 मिनट सर। हाँ। जैसे आपने ये सब बहुत सारा SD-WAN दिखाया, मतलब ये अलग अलग वेंडर्स हैं, लाइक हम्म। 48 जो ये फायरवॉल में हम कॉन्फ़िगर करेंगे SD-WAN, हाँ हाँ राइट सर? हाँ समीम, तो ये सारे SD-WAN वेंडर हैं जो SD-WAN सॉल्यूशन को मार्केट। जैसे आप कार खरीदने जाते हो, तो कार इज द नेम, राइट। आपने कार लिखा, तो कार होता है। इट कुड बी द यू नो मारुति, ठीक है, ये मारुति की हो सकती है, या आपकी ये हुंडई की हो सकती है, राइट। ये आपका BMW की हो सकती है, या आपकी ऑडी की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है मान के चलो। या किसी वेंडर का लो, टाटा की हो सकती है, आपकी हो सकती है, पोलो की हो सकती है, किसी भी वेंडर की कार हो सकती है। तो कार इज गोइंग टू बी कार, ठीक है। बट कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है कार को? तो रोड पे ही चलना है ना, हवा में चलना नहीं है। तो प्रोसेस उसमें वही ड्राइवर सीट होगा, वही 4 सीटें होंगी या 6 सीटें होंगी, 8 सीटें होंगी, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आप कार लेते हो। द कार इज गोइंग टू रिमेन अ कार, राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ड्राइव बाय द यू। और ऑलमोस्ट उसमें 4 टायर्स होंगे, ऑलमोस्ट उसमें एक स्टेयरिंग होगी, ऑलमोस्ट उसमें आपको मतलब आपकी वही बैठने की सीटें होंगी, उसमें हॉर्न होगा, तो कुछ बेसिक फीचर्स होंगे जो सेम होंगे। बट अगर आप हुंडई की कार या मारुति की कार खरीदते आप हुंडई की कार खरीदते हो, आप अगर अगर आप यही कार आप BMW की खरीदते हो, तो BMW, सो ये BMW एंड हुंडई, मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ, बहुत नॉइज आ रहा है। सो ये BMW एंड हुंडई दोनों के कार, तो कुछ बेसिक फीचर है। टायर शुड बी द 4, योर वन डायरेक्ट ड्राइविंग स्टेयरिंग वुड बी देयर, ठीक है, आपके सीटिंग के लिए बैठने की कैपेसिटी रहेगी। लेकिन अभी इन दोनों में इसमें इसका कॉस्ट ज्यादा महंगा क्यों है? क्योंकि इसके पास जो इंटरनल फीचर्स हैं, राइट, क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इसके लोग क्रेज रहते हैं। फोन भी लेने आता है, एप्पल लो या एंड्रॉइड लो, बात तो एक ही है ना, लेकिन एप्पल के पीछे लोग क्यों क्रेजी रहते हैं? तो कुछ उनकी एडिशनल फीचर होती हैं, कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। तो ऐसे ही जो आपका SD-WAN है, वो तो कॉन्सेप्ट सेम है, सबका एक ही तरह का काम करना है, सबको एक ही तरह का काम करना है। कि भाई आपके पास कंट्रोलर होगा, आपके पास टनल बनेगी, आपके पास डेटा प्लेन अलग होगा, कंट्रोल प्लेन अलग होगा। बट कुछ फीचर्स होंगी जो आपको एक से दूसरे से अलग करती है। तो वर्सा SD-WAN मार्केट में आज के डेट में बहुत पॉपुलर है। बेलो क्लाउड SD-WAN, देखो आपको दिखाता हूँ। अभी जो लेटेस्ट गार्टनर की रिपोर्ट है, दिखाता हूँ आप लोगों को। SD-WAN लेटेस्ट
गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट रिपोर्ट। देखो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है, कौन कौन से वेंडर हैं जो अभी टॉप पे चल रहे हैं। तो ये 2021 का है, 22 का नहीं है कि ये 22 का है। सिस्को एसडी वैन का है ये। तो देखो यहाँ पे जो टॉप वेंडर्स हैं उसके बारे में देखो आप लोग, ये लेटेस्ट है, ये अभी 2022 का है, 23 का भी अभी आएगा इसमें। देखो यहाँ पे सबसे जो लीडिंग पे एसडी वैन है वो आपका 14.8 है। दूसरा पे आपका ये आपका VMware है। तीसरे पे सिस्को है, VMware इज वेलो क्लाउड, ठीक है। पहला पे टॉप पे लीडर्स हैं, ये सारे लीडर हैं मार्केट के। फिर आपका वर्सा भी है, पोलो ऑल्टो भी है, आपका अरूबा का एसपीए भी है, और बाकी देखो कितने सारे आपके नीच प्लेयर भी हैं, तो ये भी अच्छे हैं। हुआवे का चैलेंजर में भी है। तो ये सारे विजनरी, जूनिपर का भी है, जूनिपर बहुत पीछे है अभी, दे आर फार अवे फ्रॉम दिस ऑल वेंडर्स। जूनिपर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो आपके ये जो बॉक्स में दिख रहा है ना, दीज आर द लीडिंग, जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। 14.8 का डिमांड है, सिस्को का डिमांड, सिस्को तो हमेशा ही रहता है, बट 14.8 रियली है ग्रेट मार्केट, क्योंकि उसका जो फीचर है फारूल के साथ साथ एसडी वन का मिलता है, ऐसी वर्षा का है। तो आपको जितने वेंडर हैं इनकी रिकग्निशन, एक गार्टनर मैजिक हमारा एक पार्टनर मैडिन जो एक ओपन जो एक सोर्स है जो इनको रिव्यू करता है, और इनके फीचर को रिव्यू करने के बाद दे कम टू अ डिसीजन कि बॉस हमारा कौन सा किस टाइप का वेंडर है और किस पे क्या चल रहा है। सो आपको अगर किसी भी वेंडर के, अगर आपको एसडी वन के बारे में पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम, बस आपके फीचर्स कुछ कुछ चेंज हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो जाएंगे। मेक सेंस समीम, समझ आया? सर इसका सर एक चीज क्वेश्चन करना था मुझे। हाँ बताइए। सर एक चीज बताइए, अगर कंट्रोलर हम किसी और वेंडर के लें और राउटर किसी और वेंडर के ले लें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये सिस्को का नहीं तो सिस्को के लेने पड़ेगी सारी सारी। आपको जिस वेंडर का सॉल्यूशन है उसी वेंडर का कंट्रोल लेना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अगर मतलब जैसे ऐसा मान के चलो कि आपने कार BMW का खरीदा और उसमें स्टेयरिंग जाके मारुति का लगाओगे, थोड़ी फिट होगा। आपको BMW की स्टेयरिंग लेनी पड़ेगी, राइट? अंडरस्टैंड? ओके सो दिस इज ओके सेम ओके। थिंग कि जिस वेंडर का आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि उस हिसाब से डिजाइन से बनाया जाता है कि यू जस्ट हैव टू रन द टेक्नोलॉजी इन दिस वे आल्सो। तो आपका जिस वेंडर का सॉल्यूशन है, दैट वेंडर इज जस्ट गोइंग टू इनटू द कंट्रोलर, और आपके राउटर उसी वेंडर के होने चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक और आता है, क्लाउड्स की नॉलेज भी होना चाहिए इसके लिए, एसडी वैन के लिए? नहीं, आपको एसडी वैन के लिए क्लाउड के कोई नॉलेज की प्रीरिक्विजिट नहीं है। एसडी वैन के प्रीरिक्विजिट आपको बेसिक, आपको राउटिंग आनी चाहिए। बेसिक राउटिंग मतलब आपको स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक OSPF और BGP अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपका, तो आप एसडी वैन यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। बस इतनी रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें। राउटिंग का नॉलेज है, क्योंकि एसडीएन में ये भी बहुत मतलब बेसिक अंडरले कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, बाकी सब कुछ नया मिलेगा आपको। एसडीएन का आर्किटेक्चर, OMP प्रोटोकॉल, यहाँ पे IP से कनेक्शन कैसे बनता है, BFD कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। कंट्रोलर कैसे बनते हैं, टनल कैसे बनती है, तो किसी भी नॉर्मल इंजीनियर को नहीं पता होता है, तो सब कुछ नया होगा। लेकिन हाँ, बेसिक राउटिंग आपको पता होनी चाहिए कि राउटिंग कैसे चलती है, आपको फॉरवर्ड रिवर्स बैक कैसे चलता है। अच्छा सर, इस पे आप जो कराओगे प्रिपरेशन इसकी, हाँ, तो इसमें VH मतलब कोई डिवाइस जैसे VH 1000 चल रहा है तो उसका कराओगे, अभी ओनली क्लाउड्स पे ही, मतलब जो VH क्लाउड मतलब इमेज वो जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए अभी ये लैब है, दैट इज बेस्ड ऑन द हार्ड मीन्स आपका जो लैब है ये पूरा वर्चुअल लैब्स है, नॉट हार्डवेयर। तो जब वर्चुअल लैब होती हैं तो वर्चुअल लैब्स पे आपके पास जो इमेजेस होती हैं वो VH क्लाउड के इमेज होती है, जो कि सेम होता है। जो आप एक्चुअल राउटर में इमेज करोगे ना यूज, वही इमेज यहाँ भी होगी। बस आपका, बस ये वर्चुअल होगा, वो फिजिकल होगा, बस इतना ही फर्क होगा, लेकिन सब कुछ सेम होगा। राउटर जैसे है, आप राउटर जैसे है, ये राउटर है, इसमें लॉग इन किया, ये राउटर ही तो है। आप राउटर पे लॉगिन करो, इस पे लॉगिन करो, तो आप कमांड तो सेम ही चलेगी ना, सब कुछ, कुछ अंदर तो नहीं आएगा इसमें, कोई डिफरेंस तो नहीं है। आपके राउटिंग प्रोटोकॉल सेम चीज, आपको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहीं और, ये बस सिमुलेटेड वे में है, ओरिजिनल डिवाइसेस होगी। तो लैब तो ऐसी होती है, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप फिजिकल डिवाइस कैसे लगाएंगे आप, यू कैन नॉट बाई द फिजिकल डिवाइसेस ना। तो ये देखो यहाँ राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही चलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है, कैसे साइट ऑनबोर्डेड है यहाँ पे। मैं एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस तरह का आप लोग लैब मिल जाएगा, ये रैक मिल जाएगा, आपको लॉगिन करना है। सारी डिवाइसेस रिमोटली कहीं से भी 24/7 एक्सेसिबल होगी, और इसको एक्सेस करके यू कैन डू योर प्रैक्टिस। तो सर इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछते थे आपने कौन कौन सी डिवाइस पे काम किया है, और हाँ तो मैं बताता मेनली हूँ ना, आपको बताता हूँ कि कौन कौन डिवाइस बताना है। जस्ट
आप बस सारे डिवाइस का फीचर एक होगा, बस आपको डेटा सेट थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा डिवाइस का क्या फीचर होता है, जो मैं बता दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हर डिवाइस का डेटा सेट है मेरे पास। मीन्स आर्किटेक्चर जो मेजर डिवाइस है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है आप लोगों को उसमें समझ में आ जाएगा। बट काम करने का तरीका आपका सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आपका काम करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जस्ट मैं एक बार इसको लॉग इन कर लेता हूँ। दैट इज एडमिन। देखो इस तरीके का डैशबोर्ड आप लोगों को मिलेगा। प्रस्मित कुमार इज आस्किंग व्हाई ट्रैफिक थ्रू एसडी वैन इज स्लो इन कंपेयर टू द नॉर्मल वैन। प्रस्मित आपको आंसर करता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। आप यूट्यूब से पूछ रहे हैं। सो विजेंद्र ने जैसा बोला कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है वर्चुअल एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस। तो देखो आपको अगर यहाँ पे जाते हो तो जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टेम्पलेट में, देखो इतने टाइप के एसडी के डिवाइसेस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखो एएसआर भी हैं, सीटी भी हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। Yes, sir. आपको आईएसआर राउटर भी हैं, इनके भी आप बना सकते हो। आईएसआर वर्चुअल है, ये देखो VH 100 100B 100M 1000 2000 500, ये तीन है। तीन आपको मेन पता होना चाहिए, तीन ही यूज होते हैं। चौथा ये VH क्लाउड, जिसपे हम सारा कुछ काम करते हैं। तो VH क्लाउड, ये कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बस आपको डेटा सेट पढ़ लेना है। डेटा सेट देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या होता है इसके बारे में। अभी खुला भी होगा मेरे पास आई थिंक। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, बिल्कुल आपको आएगा। कुछ नहीं करना, बस ये आपको एक टेबल याद रखनी है अपने दिमाग में। देखो ये रही टेबल कि VH 1000 में क्या होता है और VH 2000 में क्या होता है। आपको कुछ नहीं पता चला, थोड़े फीचर बढ़ गए इसमें, आप देख रहे हो आप। तो Yes, आपको sir. बिल्कुल टेंशन, ये 100 में क्या होता है, इससे ये सिर्फ आपको स्लाइड बस आपको दिमाग में रख लेनी है, ये आपको रेफरेंस में रखना है कि भाई इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। बाकी इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इस लैब में नॉट ओनली VH, इसमें हमने CH भी इंटीग्रेट कर रखा है, जो आपको शायद मतलब आप लोगों को अगर इफ यू ट्राई टू सर्च इन द मार्केट, बहुत कम लोग CH पे लैब कराते हैं, बट देयर इज CH एज वेल कि हमने इंटीग्रेट कर रखा है VH के साथ साथ। तो आपको CH की भी पूरी नॉलेज हो जाएगी कि CH एंड VH में कैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या क्या हमारे पास कमांड लाइन होते हैं। तो जस्ट मैं अगर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को CH, आप कई लोगों को पता नहीं CH क्यों होता है, VH क्यों होता है। ये दोनों कमांड लाइन कैसे हम ट्रबल शूट करेंगे, सब कुछ आप लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी है। यू जस्ट हैव टू लिवरेज दिस ऑल एंड जस्ट आपको एंजॉय करना है कैसे कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे इसकी CH पे कमांड क्या चलेगी, VH पे कमांड कैसे चलेगी, CH राउटर आपको कैसा यहाँ पे ऑनबोर्ड होगा, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। देखो आप लोग यहाँ पे CH के अगर देखते हो तो देखो यहाँ पे अगर मैं गया डिवाइसेस में, तो हमने VH के साथ साथ CH भी, देखो यहाँ पे CSR 1000V राउटर है, देख लो आप लोग यहाँ पे, ये CH Okay. डिवाइस है, दिस इज CH। तो इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है करने का, और इनका थोड़ा अलग प्रोसेस है, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल अलग है नॉर्मल डिवाइसेस से। CH का मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोग को, इसमें कमांड भी अलग तरीके से चलती हैं। तो ये नॉर्मली आपको, जो आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको ये सारी चीजें करने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा इन टर्म ऑफ द मेक यू अंडरस्टैंड कि सोरन कमांड चलाओगे तो आपको इसमें एसडीएन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगी, सिर्फ आपके टनल की दिखेगी और नॉर्मल राउटर की कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। तो अगर मैं इसको, अगर एसडीएन कॉन्फ़िगरेशन देखना है इस राउटर में, तो आपको शो एसडी वैन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलाना पड़ेगा, तब जाके आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसडी वैन की यहाँ पे दिखेगी। तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर कि भाई चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। देखो यहाँ पे, लेकिन अगर यही आपका VH होता तो आपको एक ही कमांड चलानी है जिसमें आपका एसडी वैन का कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा। जैसे मैं इस पे गया और इस पे मैं, मेरे को यहाँ दो कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये VH है, दैट इज विप्टेला एज, और CH इज सिस्को एज, दोनों एक ही कंपनी है, बट विप्टेला वाज लाइक द कंपनी हु मैन्युफैक्चर द विप्टेला एसडी वैन, जिसको बाद में सिस्को ने खरीद लिया था। तो देखो यहाँ पे दिस इज हाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज शोइंग, सो एवरीथिंग इज लाइव। ये मेरा प्रीवियस बैच का है, अभी काफी लोग इस बैच में हैं, सो दे एंजॉयड दिस ऑल सेशन जो हमने कल ही फिनिश किया। तो हमने काफी कुछ हमने इसमें डिस्कशन किया। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी और क्या क्वेश्चन था कि विजेंद्र, नथिंग डिफरेंट सर, सिंस लास्ट 3 वीक वर्स आर ट्रेनिंग स्टक एट द इंट्रोडक्शन सेशन। सो विजेंद्र, आपको सॉरी, आपको बताना मैं भूल गया, वर्सा ट्रेनिंग हमने इंट्रोडक्शन में नहीं, हमने लाइव कर दिया, कल पहला क्लास था। आई विल अरेंज द सेशन टू यू, ओके। बहुत अच्छा गया, ट्रस्ट मी। कल के लोगों का फीडबैक आप सुनोगे, दैट वाज अ हिंदी सेशन। आप उसको ज्वाइन करो, ट्रस्ट मी, मेरे कहने पे ज्वाइन करो आप, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि कल का सेशन पहला सेशन वन था, आई थिंक आपको कम्युनिकेशन पहुंचा नहीं समहाउ, बट हमने उसको स्टार्ट कर दिया है और 4 पीपल आर ऑलरेडी एंजॉइंग द ट्रेनिंग, ठीक है। आप चाहो तो उसमें अपने आप को आज भी क्लास है, तो मैं आपको जूम लिंक अरेंज कराता हूँ, एक बार अभिषेक सर से बोलता हूँ, आपसे बात कर लेंगे।
तो आपके वीडियो भी अरेंज मैं करा देता हूँ आज की, और एक बार उसको वॉच आउट कर लेना कि क्या उसमें पढ़ाया गया है। दैट वाज इन हिंदी और बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही मजेदार रहा। पूरा डिजाइन डिस्कशन हुआ कल, एंड आज के सेशन में उसकी फिर आगे की प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, सो ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि सेसु इज आस्किंग लाइक कि हमारे पास सर्वर है, कैन यू डिप्लॉय? यस, आप डिप्लॉय कर सकते हो, आपके पास सर्वर है, यू कैन डिप्लॉय दिस। ऑल लैब्स आर डिप्लॉय इन द आवर सर्वर्स। जो हमारे पास सर्वर्स हैं बहुत हाई कैपेसिटी सर्वर्स हैं, जिसमें वर्सा SD-WAN है, सिस्को SD-WAN है, और भी पोलो ऑटो फायरवॉल्स हैं, वेलो का इन प्रोग्रेस है। तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां पे डिप्लॉयड है। इफ यू हैविंग द रिसोर्सेज यू कैन डिप्लॉय इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है यूट्यूब लाइव से, प्रस्मित कुमार। प्रस्मित कुमार, हाय प्रस्मित, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन रहे होंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाई ट्रैफिक थ्रू SD-WAN इज स्लो इज कंपेयर टू द नॉर्मल वैन। प्रस्मित, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रू नहीं है। इट इज नॉट ट्रू कि SD-WAN को यूज करने से आपका ट्रैफिक स्लो होता है। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। स्लो ट्रैफिक आपकी होती है लिंक की वजह से। अगर ये लिंक है, अगर इसको 10 MBPS की बैंडविड्थ कैरी करने की कैपेसिटी है, 10 ही करेगी ना, ये 100 थोड़ी करेगी। तो स्लोनेस जो आती है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन योर लिंक्स, कि लिंक की कैपेसिटी क्या है। क्योंकि आपको लिंक का मतलब ट्रैफिक कैरी करना होता है। जैसे आप मान के चलो कि आपको दो तरह का रोड है, एक आपके पास एक्सप्रेसवे है, एक आपके पास नॉर्मल रोड है जो बहुत ही ज्यादा मतलब डैमेज कंडीशन में है। तो विच रोड इज गोइंग टू कैरी द हाई स्पीड कार्स? जो एक्सप्रेसवे है बट नेचुरल। तो expressway is going to carry more high speed car और normal roads are going to carry slow speed car। तो speed is always going to happen कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो SD-WAN का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया है, कैसी स्पीड है, क्या सर्किट्स है, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म ऑफ द ट्रांसमिटिंग द ट्रैफिक। सो आई थिंक throughput, अच्छा, okay, you are talking about throughput. So throughput is like same. Throughput is something SD-WAN have to process in terms of the multiple things. They have to check about the application aware routing. They have to process for the DPI, deep packet inspection. They have to do the security processing as well. They have to do about the advanced routing, IPsec key exchange. So a lot of, and they also have to talk to the controllers. So इतने सारे process करता है, तो definitely they are going to utilize the hardware resources more in terms of the processing the packet. ठीक है, जो आपका एक नॉर्मल राउटर का काम होता है सिर्फ राउटिंग देखना, ठीक है, तो उसका थ्रूपुट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इसलिए इसका थ्रूपुट कम रहता है, क्योंकि दे हैव टू प्रोसेस। बट उसका भी एक जुगाड़ है कि आप हाई एंड के बॉक्सेस यूज करो ना, आप लो एंड का क्यों यूज कर रहे हो? अगर आप हाई एंड के बॉक्सेस यूज करोगे, जैसे VS5000 यूज करोगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैविंग द हाई थ्रूपुट। ठीक है, तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट हैव टू यूज दोज काइंड ऑफ बॉक्सेस। बॉक्सेस के हिसाब से थ्रूपुट डिजाइन होता है कि आपका कितना हार्डवेयर कैपेसिटी है। हार्डवेयर आपका लो है, दे आर एबल टू process high speed traffic, then they can do the high throughput. They are able to process low speed traffic, then they are going to help the low speed traffic. Okay, प्रसमित कुमार, आई होप मैंने ट्राई किया आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चन था? विजेंद्र पूछे थे कि एडवांस वर्सा SD-WAN 15। तो वर्सा SD-WAN, विजेंद्र आप ज्वाइन करो, आपको मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप ज्वाइन करो, यू विल गेट मोर इनसाइड नॉलेज। ओके, so Prasmit is asking the price. I'm not right person to discuss, so आपको reach out करना पड़ेगा support team के साथ। So you can visit our website and you can just talk to support team, they will help you out. Okay, any other question, guys? Please share me the link of the Versa SD-WAN, sir. Okay, Sesu, so I think okay, so definitely share Sesu Versa Sir, SD-WAN link. I have a quick question. Right. Because most of the time I have seen the people what they are going to do, especially for SD-WAN, they're directly connecting to the internet router and MPLS router. Okay, but if you go in the real-time scenarios, most of the time we don't have any access of internet router, which is going to provided by service provider, and that too, whenever we are sending the packet outside, we are going to do the NAT. Then after that, we are sending to the service provider. Correct. So because right now, maybe you are going to show it in the similar way, like you just configure some routing protocols between your internet to the VHS, or you are going to show through the NAT. Because what I'm trying to understand, from the service provider router, we don't have any access, right?
Either we are going to connect, we are going to connect it to the either VH, or we are going to connect to the firewall, or we are going to connect some other router. There we just configure either PPPoE connection or static connection or DHCP according to the service provider. Right. Then after that, your router is going to do the NAT. So see, I completely understand. So let me just explain the scenario a little bit so you'll understand it clearly. Yes, sir. So one is the NAT, one is the without NAT. This is a two concept we have, right? दो ही चीजें हमारे पास. We don't have any other concepts, right? So if you want to do the NAT, so let's suppose this is the router. They want to go on the internet, plain internet. So this is private. This is the public network. So we require the NAT. So we just have to do the NAT here. This is the first scenario. So how NAT is going to be done? Let me show you. It's already configured here. So you'll find out the NAT configuration, how it is done with the policies. So let me show you. So you already find this is the NAT already configured on this device. See, this is the NAT. It's already configured. We tested in the previous class. So how the NAT is going to be configured, how the policy is going to apply for this NAT, even the policy is ready. Let me show you that policy. So at least you can visualize that policy. So this is the NAT policy also we created, because to making the NAT happen in the SD-WAN fabric, not only required the NAT configuration in the interface, also required the policies. We're having the DIA NAT policy. You can see this is a DIA policy, and this is a NAT policy only. So let me just show you the preview. So what is this DIA, sir? So DIA, that means let me show you this policy, then I'll explain. So see, this is DIA, and this is just for the NAT. How I just want to use this NAT. This is a NAT use VPN. You can see NAT use VPN 0. So I will explain what that means. So DIA is direct internet access. So any user sitting on this particular site, they want to go on the internet. So I want to send to the DIA. Instead of, there is two paths to go on the internet. This user can go to my data center. They can come this way and they can go to the internet. This is one path. Okay. Might be my internet gateway breakout rule there. So this can be go this way and they can go to this way to internet. So it could be any design. So I don't want to send my traffic to somewhere in the global data centers or somewhere in the remote data center. I just want to send with the local breakout. So I use the DIA link because they're having the high latency in this path. Might be I am in India, this data center in the US. So how, and my Facebook server is hosted in India only. So why I want to access my Facebook server via the US, which is going to increase my latency. So I use my DIA and my traffic will come from this and it will go to the direct internet. So this is how my DIA is going to work. And this is how my session is going to be work. So this is how DIA is going to be introduced. So that is a DIA where I use and we have to do the NAT. If you want to communicate to another branch, so we don't require the NAT. You don't require the NAT. You just have to build the OMP session with the, vSmarts. So all routing from this site is going to vSmart. vSmart will say it to this site. And then if this site want to communicate to this site, they will come via any of the ISP and they will reach to the destination. So no NAT is going to be required. So this is a two scenario. If you want to do the local breakout exit, if you want to do the global breakout exit, you require the NAT. If you want to do the intra-site communication or your data site communication, no NAT is going to be required. Okay, Sasu, I hope I am able to answer you. Yeah, it's very much clear, sir. And one more question, sir. Yeah, please. Question. Right now, you can see that the INET is there. That is the internet, which is all the branches are connected there. Right. So what is the role of that router? Because mostly that is provided by your service provider. So we don't have any access on that. This we don't have any access. This is our topology. So we having access, but in ISP, you just have to take a link. That's it. No role. And along with the link, also, if you are doing the JTP process, you just enable the DSCP, feature in it. So DSCP feature should be enabled. That's all. Okay. Okay. Because I'm trying to figure it out in the real-time scenarios, how we are going to deploy it. Because what are the things we need to consider? Let's say some of the customers, especially I'm working in Dubai, some of the customers, they are planning to go for SD-WAN. What are the prerequisites? Like, what we must go with the VHS or we can go with the CH also. CH. So this is a lot of questions that I'm getting. That's a really good thing. So what we can do, today is our first class. So I would recommend next week we'll start this full flash. So we'll start exactly from here. What is the design architect and how we can choose the VH and CH? How it should be my approach. If I am the engineer and someone is asking to me, what is my best solution to my customer?
right? How can I save the money? So this is what Correct. we have to going to discuss in the next class, because if I start talking those solution of architect and the design point of view, then it is going to take too long. So we having the step-by-step approach. We start with the basics, we go with the advanced, and trust me guys, this is the policy, centralized policy. Yeah. Whatever I just covered it, and I have full confidence in, you know, our training content, because this is the enough to for any SDN engineer. That much centralized policy, that much localized policy. If you know, I am fully trust, like you don't have to know, rely any other concept. It's good to start with a level 3 engineer. Like you can see the template as well, device template, feature template. See how many feature template we created via the GUI. So it's too much, nothing is left, right? So if you've done that much practice, you will the super SDN engineer. You can do everything, but you just have to make the practice. Whatever I taught, you just have to make the practice, and that's enough. Okay. Actually, any other? You are taken MPLS here. You are taken MPLS only for the lab purpose only. So in the customer side, it's not a mandatory that they have a MPLS line. No. I just show you that they can take the both internet. It's just a lab, so I can demonstrate even the internet how it's going to happen. Internet and MPLS how it is going to happen. So you should have the both flavor knowledge in case of the if you're having a requirement. Thank you. Thank you. Yeah, welcome. Any other question, मेरे friends? बताइए आप लोग. Vishnu, anything you want to ask? I can see you trying to ask something. No? No, sir. Sorry, sir. I forgot. No problem. No, sorry, यार. We are here. आप बस कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर ये कितने hours की है classes? It is going to complete. The classes is going to happen Saturday and Sunday. This 10 to 12:30, right? This is timing 10 to 12:30 means 2.5 hour daily basis. So weekly we are going to cover around 5 hour per week, right? So it is going to complete within 8 weeks. So 2 months, you just think about it. So it is going to complete within 2 weeks, means 2 months, not more than that. So you'll complete this all session in 8 or 9 weeks. Okay, sir. Okay. Actually अभी मेरा सैटरडे संडे नेटवर्किंग में चल रहा है सर. अच्छा, नेटवर्किंग चल रहा है. तो नेटवर्किंग में तो मैंने ही पढ़ाया सारा कुछ. नहीं, आपका नाम सुना था सर. मैं बहुत ट्राई किया पालो अल्टो पढ़ने का, बट अनफॉर्चुनेटली आप उधर से लेफ्ट हो चुके थे सर. कोई बात नहीं. नेटवर्किंग का मैंने काफी दिन काम किया. आई वाज अ प्राइम ट्रेनर फ्रॉम देम. ओके, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. सो आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग विद दिस गुनेट टेक्नोलॉजी. सो दिस इज हाउ इट इज लाइफ गॉन. सो नथिंग इज परमानेंट. कहीं भी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ काम करते रहो. सो नेटवर्किंग में मैंने बहुत लोग नेटवर्किंग में मेरे से पढ़े हैं. आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, वीडियो पे जाओगे, तो मेरी सारी वीडियो मिलेंगे आप लोगों को. 80% मेरी पालो अल्टो की, फायरवॉल की, CCNP की मेरी वीडियो मिलेंगे आप लोगों को. सो यू गाइस कैन फिगर इट आउट. सो दैट्स गुड. थैंक यू. एनआरसी चल रहा है सर. एनआरसी कंप्लीट होने का एनकोर करना सर. अच्छा, एनकोर करना. गुड. चलो यार, गुड. आप कहीं से पढ़ो, बट अच्छे से मन लगा के पढ़ो. Everyone is putting their heart, to just train the people. So सब लोग अच्छा कर रहे हैं. So मैं किसी के मतलब वो नहीं हूँ, but everyone is trying their best कि भाई लोगों की हेल्प करें, इंजीनियर्स को और अच्छा स्किल करें, लोगों को अच्छी नौकरियां मिले. तो यही है मिशन है, यही विजन है हमारा, और कुछ नहीं. ठीक है, बाकी चीजें तो अपने आप होते रहेंगे. मुझे क्लाउड सिक्योरिटी में थोड़ा सा करना था, जैसे नेटस्कोप और जेडस्केलर टाइप का. So JScaler का हमारे पास कोर्स है. यू कैन देखो, JScaler का हमारे पास कोर्स है. ठीक है. एंड द ओनली प्रॉब्लम JScaler बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है JScaler के साथ. JScaler का पूरा कोर्स हमारा बना हुआ है GIA का एंड ZPA का. मैं बता रहा हूँ आप लोग को. उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी लैब जो है, आप लोग अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बैच जब बोलोगे तब स्टार्ट कर दूंगा आप लोग का GIA एंड GPA का. बट एक प्रॉब्लम है, इसकी जो लैब है वी कैन नॉट प्रोवाइड. आपको $300 में USD में आपको JScaler से ही लैब खरीदना पड़ेगा. You just have to purchase this lab from the JScaler. तो अगर आप लोग लैब खरीद के आते हो कि मेरे पास 3 या 4 या 5 लोग का ग्रुप आता है कि भाई मैंने लैब हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, या फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर एक ही लैब ले लो, वी आर गोइंग टू शेयर द कॉस्ट और हमें पढ़ा दो, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो. हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है. तो क्योंकि लैब कराना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर JScaler, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि देयर इज अ प्री रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास है, सब कुछ इसमें बताया गया है. तो अगर आपके पास कंपनी में ऑलरेडी यूज हो रहा है JScaler, यू कैन जस्ट गो विद द वीडियोज. बहुत डिटेल में है, एक चीज को ट्रस्ट में, एक चीज को इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा. ठीक है. और आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय द वीडियो सेशंस.
ठीक है, उसको लेने के बाद वीडियो सेशन आप लोग लो, और उस वीडियो सेशन लेने के बाद यू कैन जस्ट एंजॉय द Zscaler फुल कोर्सेज, और आपको फिर वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सर आपको अभी लैब हमारे यहाँ पे सर नेट स्कोप चल रहा है। नेट स्कोप की आपकी क्लाउड प्रॉक्सी चल रही है या फायरवॉल चल रहा है? क्लाउड प्रॉक्सी। अच्छा, क्लाउड प्रॉक्सी, ठीक है, नॉट नेट स्कोप पे क्लाउड प्रॉक्सी। तो वो अगर मिल जाता सर तो मेरे लिए बेटर था नेट थोड़ा सा। स्कोप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट है मार्केट में, बहुत लेस डिमांड है, लेस कस्टमर है, ठीक है, तो एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको। तो मिलता है तो मैं बताता हूँ इसमें आपको, ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है। सर इसमें जैसे थैंक यू। VH डिवाइसेस हैं, ये हाँ हाँ, वर्चुअल भी हैं और हार्डवेयर भी हैं, ये दोनों ही होती है दोनों ना इसमें? होती है, दोनों होती है, वर्चुअल भी होती है, हार्डवेयर भी होती है। सो देखो तो ये जैसे सारे। हाँ वर्चुअल को बताइए। काम कैसे, जैसे वर्चुअल डिवाइस है, मान लो कोई इमेजेस है, तो उसको किसी ना हम्म, किसी हार्डवेयर में डालना पड़ता है पहले उसको काम, मतलब उसका पोर्ट, क्योंकि वर्चुअल हाँ भी हाँ, पोर्ट ये सब कैसे बिल्कुल कैसे करना बिल्कुल पड़ता है? कैसे करना पड़ता है? अच्छा ठीक है, तो ये दैट्स रियली गुड क्वेश्चन। बड़ा कंफ्यूजन होता है इंजीनियर्स को ना। पूरा हम्म। नेम आपका क्या हुआ? एस खान, राइट? व्हाट्स योर फुल नेम? सरबत अली खान सर। सरबत अली खान। सरबत अली खान, दिस रियली गुड क्वेश्चन। सो वर्चुअलाइजेशन एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअलाइजेशन एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए, अगर आपको वर्चुअलाइजेशन सीखना है कैसे काम करता है, ठीक है, तो हम्म। कभी भी टाइम मिले तो आप, एक चैप्टर है CCNP इन कोर में, अगर मैं उसको बताने जाऊंगा तो इट इज गोइंग टू बी टेक लॉट ऑफ, इसलिए मैं बोलता हूँ हर किसी को इन कोर पढ़ा करो। इन कोर पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में। इन कोर इज वन ऑफ द बाइबल ऑफ द नेटवर्किंग, सिस्को के लिए खासकर। तो इन कोर के अंदर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग है ना, ये सारे क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें एक चैप्टर है वर्चुअलाइजेशन। ये जो पढ़ते हो ना अच्छा। वर्चुअलाइजेशन, इट इज गोइंग टू टेल हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। जो हमारे यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ तो देखो, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ कैसे इन कोर में ये सारी चीजें होती हैं। सो कौन सा मॉड्यूल है? मॉड्यूल 2 है। सो कैसे इसके फिजिकल सर्वर्स जो होते हैं, ये कैसे आपके वर्चुअल निक से इंटीग्रेट होते हैं। देखो यहाँ पे फिजिकल स्विच हो गया, वर्चुअल स्विच होगा, इसका कैसे निक से होता है, और फिजिकल सर्वर से कैसे मैपिंग होती है। ये सारा चीज आपको इस वर्चुअलाइजेशन में पढ़ाया जाता है। तो यू विल बिकम द चैंपियन, कि आपको अगर ये करते हो तो आपको सारी चीज होने लगेगा। हाइपरवाइजर क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 कैसे होता है, लाइनेक्स विंडो सर्वर कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें आपका CCNP इन कोर के पार्ट्स हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके ना CCNP इन कोर में अच्छा। सारे क्लियर हो जाएंगे। जब एसडीएन पढ़ोगे तो यू विल लाइक चैंपियन। अगर नहीं भी अगर आती है तो आपको टेंशन नहीं होती है, एसडीएन तो सीख जाओगे, बट यू कैन लेटर एक्सप्लोर दिस चैप्टर। आपको बड़े आसानी से आपको इसमें ज्ञान मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात सर नहीं है। क्योंकि एनकोर सर का एक प्री क्वेश्चन, रिकॉर्डेड सेशन है क्या? क्या? हाँ, इनकोर का रिकॉर्डेड सेशन है, सब है हमारे हाँ, पास, इनकोर का, NRC का, सब है। ओके सर ओके, इसमें एक ठीक है क्वेश्चन सर। हमसे ज्यादातर ये पूछा था ना कि आप जो VH डिवाइस पे काम करते हो, कौन से डिवाइस हम्म। पे, क्लाउड्स पे काम करते हो या वैसे आप काम करते हो? तो उससे बोला जाता है VH 1000 पे काम करते हैं, क्योंकि क्लाउड्स बोलने का मतलब होता है फिर कैसे कैसे आप आपको करते हो। आपको बोलना ही नहीं है ना कि आप क्लाउड पे, आप बोलो कि आई एम द हम्म। प्रोडक्शन इंजीनियर, मैं VS हम्म। 1000 पे काम करता हूँ, 2000 पे काम करता हूँ, 5000 पे काम करता राइट हूँ। प्रोसेस राइट सबका राइट। सेम ही रहेगा ना, प्रोसेस कुछ। अब हम्म। राउटर, आप राउटर ASR पे काम करते हो, ISR पे काम करते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल तो दोनों पे BGP चलेगा ना, BGP तो एक ही तरह काम करेगा, राइट? यस सर। आपको स्टैटिक राउट तो ऐसे ही कॉन्फ़िगर होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में नॉलेज रख लेना है, खत्म हो गई बात। कुछ आप खुले में बोलो कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द VS 2000, आस्क मी। आपको टेबल बस याद कर लेना है, बस खत्म। ये ओके टेबल और ये ओके। टेबल याद रखना है, बस खत्म। किसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसमें 4 SAP होते हैं, इसमें आपका 8 जी के SAP होते हैं, इसमें 4 फिक्स्ड होते हैं, ये सारे 2 प्लगबल इंटरफेस मॉड्यूल होते हैं। इसमें डुअल पावर रिडंडेंसी होता है, इसमें आपको डुअल पावर सप्लाई एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस। ओके क्लियर? ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। या सो चीजें बहुत ही तरीके से होंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स वी कैन डिस्कस, और वी आर गुड टू क्लोज फॉर टुडे, विल कनेक्ट नेक्स्ट वीक। अलीम सर कैसे हैं? यू एबल टू हियर मी? ये सब good। आप क्या कैसे? चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। कराता हूँ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, मैं कराता हूँ, कल से मुझे ध्यान है, सो आज प्रॉब्ली हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। So Alim is our old student, previous batch में he joined, so इन्होंने complete किया, तो he also joined today. तो ठीक है। So if you don't have any question guys further, we can conclude the session for now, and next week same time 10 a.m. IST we'll start the very fresh session, and I request to everyone try to like enjoy this session with me, and आप लोग feedback session जो भी है आप लोग दे सकते हो, and definitely we'll work on that. Okay.
Okay, thank you everyone. Yes, PK noted your feedback, highest throughput, and thank you so much everyone. See you again in the next class. Bye-bye.